Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Fragrance. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is a deductive reasoning based set which I've taken from previous year's SIMCAT, and the set says Professor Iyer is conducting experiments with six rare minerals A, B, C, D, E, and F to study their pairwise fusion compatibility. If two minerals in a pair fuse together easily, they are classified as highly compatible with each other. If the two minerals in a pair fuse together with difficulty, they are classified as low compatible. If the two minerals in a pair do not fuse at all, they are classified as non-compatible. These three minerals are mutually exclusive and collectively exhaustive for all six minerals. Partial information about the number of highly compatible, low compatible, and non-compatible minerals for each of the six minerals is summarized in a table below. For instance, exactly two minerals are highly compatible with A. The following additional facts are known. A mineral never fuses with itself, and such a test has never been performed by Professor Ayer. B, there is only one mineral that fuses with every other mineral, either easily or with difficulty. This mineral is the only one that fuses slowly with C. C is the mineral that has unique highest number of non-compatible mineral among all. Unique highest mean that if we count how many minerals do not fuse with a given one, C's count is the largest and no other mineral shares the same number. D and F are the two low compatible mineral for A. B and F do not fuse with C at all. The highest numerical values under the three column, highly compatible, low compatible, and non-compatible are distinct, and none of them none of them needs to be unique for the particular column. D does not fuse easily with C. F fuses with B either easily or with difficulty. E fuses easily with B, D, and F. क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ? फॉर हाउ मेनी पेयर ऑफ मिनरल्स कैन द पेयर वाइज फ्यूजन कंपैटिबिलिटी बिटवीन दीस टू मिनरल बी यूनिकली डिटरमाइंड? क्वेश्चन नंबर 2, which of the following pair of minerals definitely fuse with each other slowly? क्वेश्चन नंबर 3 बोला for which of the following set of three minerals are the pair wise fusion compatibilities with all other five minerals uniquely known for each other? Question number 4, how many minerals, at least three possible, shows highly compatible? And question number 5, what percent of all possible pair among these minerals are non-compatible? डिस्ट्रीब्यूशन का सेट आई वुड से, या डिडक्टिव रीजनिंग का सेट, जिसके अंदर अपने को क्या करना है, अपने को 6 अलग-अलग मिनरल है जो कि आपस में एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा जा रहा है कि दे आर हाइली कंपैटिबल और दे आर लो कंपैटिबल और दे आर नॉन कंपैटिबल. ठीक है, उनका रिलेशन आपको डिटरमाइन कर पाना है, यहाँ पे निकालना है. अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने पीवाईक्यू लगाया है, तो यू वुड हैव रियलाइज्ड दिस इज अ सेट व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम कैट 21 का स्लॉट 1 का सेट है, जिसमें कि फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस और स्ट्रेंजर को लेकर आइडेंटिफाई करना था. एकदम सेम सेट है, वहाँ पे 7 कैरेक्टर थे, यहाँ पे 6 लोगों को बस कर दिया है. और वहाँ पे भी इसी तरीके से हमने 2 फ्रेंड्स के बीच में डिफाइन करना था whether they are friend or stranger or acquaintance. तो यही सेम चीज़ अपने को यहाँ पे करना है. We need to identify whether A and B are highly compatible or low compatible or non compatible. ठीक है. अब है क्या कि सबका अपना-अपना पेयर निकालने वाला है, तो पेयर वाइज़ कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा कितना? 6C2 होना चाहिए, बिकॉज़ 6 मिनरल है और सबका 2-2 पेयर निकालना है. 6C2 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5/2, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 50. ठीक। इसको चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो. ए विल हैव यहाँ पे 5 वैल्यूज, बी विल हैव 5, ऐसे 6 5 से 30 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. डिवाइडेड बाय 2 इसलिए करेंगे बिकॉज़ ए और बी और ए तुम 2 बार कर रहे हो. बेसिकली राउंड रॉबिन का यहाँ पे चल रहा है. सो यू कैन ट्राई बाय मेकिंग अ राउंड रॉबिन टेबल आल्सो. यू कैन ट्राई बाय फिलिंग दिस पर्टिकुलर टेबल आल्सो. जैसे मैंने ये वाला जो सेट है वो इसी गिवन टेबल में मैंने भर लिया, तो आई विल ट्राई विद दिस सेट. बहुत सारे बच्चों ने बोले सेट को राउंड रॉबिन से भी किया था, बट मेरे लिए वो थोड़ा लेंथी बना था, तो आई थॉट टू गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर, इसी पे भरना चाहा. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट. पॉइंट नंबर ए बोल रहा है कि अ मिनरल नेवर फ्यूजेस विद इटसेल्फ एंड सच अ टेस्ट हैज नेवर बीन परफॉर्म्ड बाय प्रोफेसर अय्यर. जो भी ए है, ए का आपस में कोई रिलेशन नहीं होने वाला, ऐसा ये बताना चाह रहा है. पॉइंट नंबर बी कह रहा है कि देयर इज ओनली वन मिनरल दैट फ्यूजेस विद एवरी अदर मिनरल एंड ईदर इजीली और विद डिफिकल्टी. दिस मिनरल इज द सॉरी सॉरी हाँ, फिर से पढ़ लेते हैं. बेसिकली यहाँ पे केस बना हुआ था 15 का, अपने को पता है कि 15 अपने को केसेस बनाने हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर ए हमने पढ़ लिया था, पॉइंट नंबर बी को दोबारा पढ़ लेते हैं.
देयर इज ओनली वन मिनरल दैट फ्यूजेस with every other mineral either easily or difficulty. This mineral is the only one that fuses slowly with C. कह रहा है कि कोई एक मिनरल ऐसा है जो कि किसी ना किसी से वो कंपैटिबल है, मतलब वो नॉन कंपैटिबल वाला जो बॉक्स है वहां पे वो जीरो देगा। वो या तो ए हो सकता है, वो बी नहीं हो सकता, वो या तो सी हो सकता है, या तो डी हो सकता था, या तो ई हो सकता है, वो एफ भी नहीं हो सकता, बिकॉज बी और एफ का ऑलरेडी कोई यहाँ पे नंबर दे रखा है। दिस मिनरल इज ओनली वन दैट फ्यूजेस स्लोली विद सी। और कह रहा है कि वो मिनरल वही है जो सी के साथ लो कंपैटिबल होने वाला है, यानी कि वो सी भी नहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट में कॉन्टेक्स्ट दे रहा है पॉइंट नंबर बी में, ये किसके लिए दे रहा है? ये या तो ए के लिए दे रहा है, बिकॉज ए में यहाँ पे जीरो आ सकता है, बी में नहीं आ सकता, वो सी नहीं होगा बिकॉज अगली ही लाइन में ये लिख दिया कि वो पर्टिकुलर जो मिनरल है वो सी के साथ लो कंपैटिबल है, तो वो सी तो नहीं होने वाला। वो डी हो सकता है, ठीक है, वो ई भी हो सकता है, ठीक, वो एफ नहीं होगा बिकॉज एफ की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 2 दे रखी है। ठीक, पॉइंट नंबर बी ऑल्सो नोटेड। Point number C. C is the mineral that has unique highest number of non-compatible mineral among all. ठीक है। C एक ऐसा मिनरल है जिसके पास यहाँ की जो वैल्यू है वो यूनिक हाईएस्ट होने वाली है। यूनिक हाईएस्ट मीन दैट इफ वी काउंट हाउ मेनी मिनरल डू नॉट फ्यूज विद अ गिवन वन, C's count is largest and no other mineral shares the same number. अगर हम ये देखें कि इस कॉलम के अंदर सबसे बड़ा नंबर किसके पास है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि C का सबसे बड़ा नंबर था, दैट वाज अ यूनिक नंबर। ठीक। अब यार यहाँ देखना, यहाँ पे ये क्या हो सकता है? 2 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना, 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 2 से बड़ा क्यों होना चाहिए? बिकॉज़ 2 तो ऑलरेडी है ना, तो 2 से बड़ा हाईएस्ट होगा ना। वो या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता था, या तो 5 हो सकता था, वो 6 नहीं हो सकता था बिकॉज़ 6 ही तो मिनरल है और सी का बाकी 5 से ही अपने को देखना है, तो या तो 3, 4, 5 होना चाहिए था, ठीक। ऑल्सो अभी पीछे वाले पॉइंट में मेरे को क्या बोला था कि एक ऐसा मिनरल है जिसकी 0 नॉन कंपैटिबिलिटी है, वो पर्टिकुलर मिनरल की सी के साथ कंपैटिबिलिटी क्या है? लो है। ठीक है, ये ऊपर जो बोला था ना अपने को इस वाले पॉइंट में, यहाँ पे ये बोला था ना कि एक ऐसा मिनरल है जो कि ए, डी में से कोई होना चाहिए जिसका नॉन कंपैटिबिलिटी 0 है, उसकी कंपैटिबिलिटी सी के साथ लो होने वाली है। तो मतलब सी की जो यहाँ की वैल्यू है वो क्या बन सकती है? वो या तो 3 बन सकती है, ठीक है, या तो वो 4 बन सकती है। वो 5 तो नहीं बन सकती, यहाँ पे ये समझ आ रहा है। वो 5 इसलिए नहीं बन सकती बिकॉज़ अगर मैं 5 दे दूँगा तो यार सारे तो यहीं चले गए ना, और हमें पता है कि सी की लो कंपैटिबिलिटी की वैल्यू एटलीस्ट 1 तो आ ही रही है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक? पॉइंट नंबर बी और सी यूज़ करके हमने इतनी चीज़ों को फिगर आउट कर लिया। ठीक? पॉइंट नंबर डी, डी एंड एफ आर द 2 लो कंपैटिबल मिनरल फॉर ए। ठीक है? ए के लिए जो 2 लो कंपैटिबल है उनका नाम दिया हुआ है डी और एफ। अब यहाँ पे ध्यान देना, आर दी ओनली नहीं बोला हुआ है, ये बोला हुआ है आर दी 2, ठीक है? अगर ओनली 2 बोला होता तो यहाँ पे बहुत आसान हो जाता, यहाँ पे 2 करता, यहाँ पे 2 करता और यहाँ पे 1 कर देता। बट यहाँ पे बोला हुआ है कि आर दी 2, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि डीएफ के अलावा भी कोई आ सकता है, या ये हो सकता है केवल यही दोनों आए, ठीक है? अब क्योंकि ए और डी का रिलेशन मिला हुआ तो डी और ए का भी रिलेशन मिल गया, यानी कि ए को यहाँ पे आना चाहिए। सिमिलरली ए और एफ का मिल चुका है तो एफ और ए का भी मिल चुका है, वो जो कि यहाँ पे आना चाहिए। ठीक। पॉइंट नंबर डी ऑल्सो नोटेड। पॉइंट नंबर ई, P एंड F डू नॉट फ्यूज C एट ऑल। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो 2 आने वाले थे, या 3 या 4 जो भी आने वाले हैं, उनमें से 2 का नाम बता दिया, वो कौन है? B और F है। ठीक है? यानी कि यहाँ पे C आएगा ही आएगा, यानी कि यहाँ पे C को आना तय है। C के अलावा भी कोई आ सकता है। ठीक? अच्छा, पॉइंट नंबर E वाज़ आल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पॉइंट नंबर F, द हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू अंडर द 3 कॉलम हाइली कंपैटिबल, लो कंपैटिबल एंड नॉन कंपैटिबल आर डिस्टिंक्ट। अच्छा, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू किसी भी एक इस बॉक्स में होने वाली है, 6 में से किसी भी बॉक्स में होने वाली है, वो तीनों की अलग-अलग होने वाली है। मतलब हाइली कंपैटिबल की हो सकता है 3 हो, लो की 4 हो और नॉन की 5 हो, ऐसा। हालाँकि नॉन की 5 तो नहीं हो सकती, 5 तो उसी की होगी जिसका बाकी 2 का 0 होने वाला है। ठीक है? एंड नन ऑफ देम नीड्स टू बी यूनिक फॉर द पर्टिकुलर। ज़रूरी नहीं कि वो यूनिक हो, ठीक है? अपने कॉलम में मतलब जैसे यहाँ पे तो पता है कि ये यूनिक है, ठीक है? इसके लिए तो हम नहीं कह सकते। तो नॉन कंपैटिबल के लिए तो पता है कि या तो ये 3 या 4 होने वाली है। अब वो कितनी नहीं पता और वो यूनिक है। बट लो कंपैटिबल के लिए अभी तो कुछ भी नहीं पता, हाइली के लिए कुछ नहीं पता। हाँ, इस स्टेटमेंट से मैं ये इन्फर कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे ये 3 हाई नहीं होगी, या तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे 2 हाई होना चाहिए। सिमिलरली अगर हाइली कंपैटिबल की बात करें, अगर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 या 2 में से कुछ एक होना चाहिए। ठीक? पॉइंट नंबर एफ को भी होल्ड करना चाहूँगा। ये पॉइंट ऐसा है जो कि अपने को बाद में मदद कर सकता है। पॉइंट नंबर जी, डी डज़ नॉट फ्यूज़ ईज़िली विद सी। डी एक ऐसा है जो कि सी से ईज़िली फ्यूज़ नहीं होता है। अच्छा, अगर वो ईज़िली नहीं होता मतलब वो हाइली कंपैटिबल नहीं है। तो मतलब वो या तो लो कंपैटिबल है या तो वो
नॉन कंपैटिबल है, ठीक है? तो ये पॉइंट को थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? तो डी और सी का रिलेशन ऐसा है जो कि स्टार मार्क करना पड़ेगा, यानी कि डी और सी का रिलेशन ऐसा है जो कि स्टार मार्क करना पड़ेगा बिकॉज़ वी आर नॉट श्योर इतना दे दिया कि भैया डी और सी हाइली कंपैटिबल नहीं है। डी और सी लो कंपैटिबल है या नॉन कंपैटिबल है, ठीक? एफ फ्यूज़ेस विद बी, एफ जो है बी से फ्यूज़ होता है, ठीक है? ईदर ईज़िली और विद डिफिकल्टी, अच्छा एफ का जो है बी के साथ या तो हाई है या तो लो है, नॉन नहीं है, ठीक है? एफ का बी के साथ या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे नॉन, ठीक है? तो यहाँ पे एफ और यहाँ पे बी के बारे में ऐसा लिख लेते हैं दिस, ठीक है? ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपन हैश और स्टार से मार्क करके चलें, ठीक है? दोनों पॉइंट को मैं अभी टिक नहीं कर रहा बिकॉज़ दोनों पॉइंट मेरा रीयूज़ हो सकता है। लास्ट पॉइंट, ई फ्यूजेस इज़िली विद बी, डी एंड एफ। ई एक ऐसा था जिसको कि जो कि हाइली कंपैटिबल है विद बी, डी एंड एफ, ठीक है? बी, डी एंड एफ, ठीक है? यानी कि बी, डी एंड एफ, ठीक है? अच्छा, तो पॉइंट नंबर आई को हमने बहुत आसानी से यूज़ कर लिया। सॉरी इसको ई लिखो, ठीक है? थोड़ा ये वियर्ड सा हो गया, ठीक है? अब अपने पास इतनी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब देखो जो टेबल का हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को तो फिल कर लिया। नाउ अभी अपने पास जो पॉइंट बचे उस पे थोड़ा-सा दिमाग लगाए थे तो मे बी बी एबल टू फिल द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। अभी अपने पास क्या बचा है? नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। आई का पॉइंट यूज़ हो गया। एफ का पॉइंट क्या बोला था? एफ यूजेस विद बी विद ईदर ईज़िली और ये, ठीक है। एफ और बी का या तो यहाँ पे है या तो यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो तो एफ का 5 के साथ आना था जिसमें से 2 यहाँ पे आना था, ठीक है। एक इधर है, एक इधर है और बी यहाँ पे नहीं आता तो जो 5वाँ एलिमेंट है वो यहीं पे आना चाहिए। ठीक, ये तो एकदम क्लियर कट दिख रहा है, बहुत आसानी से दिख गया। फिर से बता देता हूँ एफ का 5 अलग-अलग एलिमेंट्स के साथ बताना था। 1, 2 और ये तीसरा या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। यही लिखा था ना कि एफ और बी या तो ईज़ी है या तो हाई डिफिकल्ट है, यानी कि हाई और लो में, वो नन पे नहीं है। तो नन पे कौन होना नॉन कंपैटिबल कौन होना चाहिए था? वो कौन होना चाहिए था? वो होना चाहिए था डी को, ठीक है? तो यहाँ पे ये मिल गया यानी कि डी एंड एफ आर नॉन कंपैटिबल, ठीक है? अब इसकी वजह से डी यहाँ से भी उड़ जाएगा बिकॉज़ यहाँ पे मैंने डी को वो इसलिए रखा था कि मैं शुरुआत में मेरे को ऐसा लग रहा था कि डी कुड बी समवन व्हिच विल हैव 0 एज़ अ वैल्यू इन नॉन कंपैटिबल बॉक्स बट यहाँ पे तो डी में एक वैल्यू तो अपने को दिख रही है। अच्छा, पॉइंट नंबर एफ आल्सो नोटेड। अब अपने पास जो नॉन कंपैटिबल में 0 हो सकते हैं वो ए हो सकते थे या तो ई हो सकते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर जी को पढ़ते हैं। डी डज़ नॉट फ्यूज़ ईज़िली विथ सी। डी जो है सी से ईज़िली फ्यूज़ नहीं होता है। अगर वो ईज़िली नहीं होता है तो वो लो भी हो सकता है, वो नन भी हो सकता है। ठीक है, नॉन कंपैटिबल भी हो सकता है। वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है। यार ये फिर से डिटरमाइन कर पाना अभी तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर एफ को पढ़ते हैं। द हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू अंडर द 3 कॉलम इज़ हाइली कंपैटिबल, लो कंपैटिबल और डिस्टिंक्ट। अच्छा, यार यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो क्या हो सकती है? अभी देखा जाए तो 3 तो मिल रही है। क्या 3 से ज़्यादा हो सकती है? दिमाग लगाते हैं। फिलहाल 3 तो दिख रही है। यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे भी 3 ही आ सकती है मैक्सिमम, 3 से ज़्यादा नहीं जा सकती। यहाँ पे तो 3 भी नहीं होगी। यहाँ पे भी 3 दे सकते हैं। यहाँ पे 4 भी बना सकते हैं यार, ये ध्यान दो तो। है ना? ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे चौथा बंदा आ जाए और यहाँ पे ये 0 चला जाए और ऐसा पॉसिबल भी है बिकॉज़ 0 यहाँ पे हमने लेके एक केस मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 0 आना है। ठीक है? और यहाँ पे भी नहीं बन सकती, यानी कि अगर ध्यान दें तो हाइली कंपैटिबल में 3 और 4 में से कुछ एक होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा कैच है। क्या लिखा था? द हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हैज़ टू बी डिस्टिंक्ट। अब 3 या 4 में से कोई एक अगर इधर है, दूसरा इधर है, यानी कि लो कंपैटिबल ऐसा जिसका 3 और 4 कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखना ना, यहाँ पे 3 और 4 होना में से होना किसी एक को तो कंपल्सरी है। नाउ दैट वी नो, यहाँ पे 3 दिख रहा है। अब ये 3 या 4 भी बन सकता है। देखना यहाँ पे ना, तो यहाँ पे ये पता है कि जो 3 वाला नंबर है वो हाइली कंपैटिबल में होगा, नॉन कंपैटिबल में 4 होगा या वाइस वर्सा हो सकता है। यानी कि लो कंपैटिबल में 3 और 4 नहीं आ सकता एज़ अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? क्या 5 आ सकता है? 5 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है यहाँ पे। अच्छा, 5 किसी पे नहीं आ सकता ना, देख सकते हो। 5 देने का मतलब दी अदर 2 बॉक्सेस वुड हैव 0। तो यानी कि यहाँ पे क्या ले सकते हैं? यहाँ पे 2 है जो कि हाईएस्ट लेना पड़ेगा। 2 हाईएस्ट लेने का मतलब यहाँ पे ये 2 देना पड़ेगा, तभी बनेगा। ठीक है? यहाँ पे 2 से ज़्यादा जा नहीं सकता। ठीक? अब यार ये पॉइंट ने मेरे को बहुत ज़्यादा मदद कर दी है।
नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पे ये पूरा सेट कहानी फँसा लिया। देखो अगर 2 यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 1 को होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता। अब ये सेट थोड़ा आसान हो गया यानी कि ई ऐसा होगा जो कि 0 होना पड़ेगा, ठीक है? अगर ई 0 है, ई 0 होने का मतलब यहाँ पे 4 देना पड़ेगा, तभी वो 4, 1 और 0 का बनेगा, ठीक? क्योंकि यहाँ पे 4, 1 और 0 बन गया एंड 4 यहाँ पे मिल चुका है तो यहाँ से यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे अपने को 3 वाला केस लेना पड़ेगा, यानी यहाँ से 4 को अपने को हटाना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो ये सेट तुम्हारा काफ़ी हद तक क्रैक हो गया। अब अपने को दोबारा से स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे और चीज़ों को फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं वो स्टेटमेंट पे फोकस करता हूँ, पहले जो अपने हमने छोड़े थे। पहला पॉइंट ये वाला, देयर इज़ ओनली वन मिनरल दैट फ्यूज़ेस विथ एवरी अदर मिनरल, दैट मिनरल इज़ ये वाला पार्ट, ठीक है? एंड दैट पर्टिकुलर मिनरल इज़ द सेम मिनरल व्हिच फ्यूज़ेस स्लोली विथ सी, यानी कि यहाँ पे सी की वैल्यू आनी पड़ेगी स्लोली, यानी कि सी और ई का रिलेशन ऐसा है जो कि स्लोली होने वाला है, ठीक है? अच्छा। तो यहाँ पे ये पार्ट आ गया। तो अभी यहाँ पे कौन आएगा? बी, एफ के अलावा कोई और भी आ सकता है। ऑल्सो यहाँ पे कौन आ गया? बी, डी, एफ और ए आना पड़ेगा, ठीक है? अगर ए यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा? ई आना पड़ेगा। तो ई के लिए अगर ध्यान दो तो वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल द वैल्यूज़, ठीक है? यहाँ पे बी, डी, एफ, सी पूरा निकल गया, ठीक? तो यहाँ पे पूरी 5 वैल्यूज़ यूनिकली निकल चुकी हैं, ठीक? अच्छा, चलो और दिमाग लगाते हैं। अपने पास क्या बोला था कि देयर इज़ ओनली वन मिनरल दैट फ्यूजेस विद एवरी अदर मिनरल ईज़िली और विद डिफिकल्टी, द मिनरल इज़ ओनली दैट फ्यूजेस विद स्लोली विद सी। तो यार ये पार्ट से तो हमने यूज़ कर लिया। और उसके बाद वाले पॉइंट्स हमने क्या पढ़ा था? देयर इज़ ओनली वन मिनरल दैट नहीं, सी वाज़ द ओनली मिनरल, अब वो भी हमने निकाल दिया कि यहाँ पे 3 वाला केस होना चाहिए था। ठीक है। हमने ये वाले पॉइंट पे भी यूज़ कर लिया था डीएनएफ वाला, बीएनएफ वाला भी था। बी और एफ भी ऑलरेडी यूज़ है। बी और एफ वाला यूज़ है, बी और एफ वाला नहीं। बी और एफ वाले को दिमाग लगाते हैं ना। बी और एफ के बारे में अपने को क्या पता था? बी और एफ ऐसे हैं जो कि डू नॉट फ्यूज़ विद सी एट ऑल। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर ई था बी एंड एफ डू नॉट, अच्छा ये तो लिख रखा है, सॉरी ये तो लिख रखा है। वही मैं सोचूँ यहाँ पे तो टिक लगाया हुआ मैंने। ठीक है। द हाईएस्ट न्यूमेरिकल, अब यार ये पॉइंट तो हमने यूज़ कर लिया, इससे यूज़ करके हमने निकाल दिया कि यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या होने वाली है 3, यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू वो क्या होने वाली है 4। तो ये तो हमने सेट यूज़, ये वाला पॉइंट भी हमने यूज़ पूरा कर लिया। पॉइंट नंबर जी, डी डज़ नॉट फ्यूज़ ईज़िली विद सी। डी जो है सी के साथ ईज़िली फ्यूज़ नहीं होता है। डी डज़ नॉट फ्यूज़ ईज़िली विद सी। तो सी और डी का ईज़िली अगर नहीं होगा, अगर हाइली कंपैटिबल नहीं है, तो वो लो कंपैटिबल भी हो सकता है, वो नॉन कंपैटिबल भी हो सकता है, ठीक है? तो यार ये भी अभी डिटरमाइन कर पाना फ्रॉम सी तो पॉसिबल नहीं है, डी से देखें, डी और सी यहाँ पे भी आ सकते हैं, डी और सी सॉरी डी और सी यहाँ नहीं आएँगे, डी और सी यहाँ पे आ सकते हैं, डी और सी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा और क्या पता है? एफ फ्यूज़ेस विद बी ईदर ईज़िली और डिफिकल्टी। एफ जो है बी के साथ या तो आसान से हो जाएगा या तो डिफिकल्ट तरीके से होगा। तो एफ और बी, एफ यहाँ पे भी आ सकता है, एफ यहाँ पे भी आ सकता है, सिमिलरली बी इधर भी आ सकता है, बी इधर भी आ सकता है, ठीक है? तो ये भी अपने को डिटरमाइन कर पाना मुश्किल है, ठीक है? अच्छा लास्ट लास्ट वाला पॉइंट हमने यूज़ कर रखा है, ठीक है? अब इनको नोट करना शुरू करें, देखते हैं क्या पूछा हुआ है, फिर उसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। ए कैसा है? ए के अलावा कौन-कौन बचा है? ए का रिलेशन बी के साथ बाकी है, ठीक है? ए का रिलेशन सी के साथ बाकी है और डी, ई, एफ के साथ अपने को मिल चुका है। तो ए और बी को यहाँ दे सकता हूँ, दे सकता हूँ। ए और बी को नॉन कंपैटिबल भी बना सकता, ठीक है? सिमिलरली ए और सी के बारे में कुछ मैं कह सकता हूँ? ए और सी को मैं कुछ भी नहीं बता सकता। ए और सी कुड बी एट दिस प्लेस और ए और सी कुड बी एट दिस प्लेस, ठीक है? हटाता हूँ इसको। बी और इसकी बात करें तो बी के बारे में अभी अपने को केवल 2 मिले हैं। अपने को ए नहीं मिला, डी भी नहीं मिला और एफ भी नहीं मिला, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो ना बी के लिए अपने को ना ही ए मिला हुआ है, ना ही डी मिला हुआ है, ना ही एफ मिला हुआ है। तो ठीक है ना? यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? थोड़ा फ़ोकस करते हैं। क्या यार यहाँ पे अपन कुछ नंबर्स लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे देखो 2 है, 1 है, 2, 1, 2 ठीक है, यहाँ पॉसिबल है। रुकते पहले ये वाला पार्ट भर भर लेते हैं तो दिस विल एक्चुअली हेल्प मी टू
एलिमिनेट मोर केसेस ना, थोड़ा ये आसान हो जाएगा। सी के लिए मेरे को क्या पता है, आई हैव आइडेंटिफाइड बी, एफ एंड ई। मेरे को ए और डी के बारे में अभी आइडेंटिफाई करना इससे बाकी है। इसमें सी और ए इधर आ सकता है, सी और डी भी आ सकता है। सी और डी कहाँ पे, डी और सी के बारे में बस इतना लिखा था कि डी एंड सी आर नॉट ईज़ी हाइली कंपैटिबल, ठीक है? अगर डी और सी हाइली कंपैटिबल नहीं तो डी और सी या तो यहाँ पे आएँगे या तो यहाँ पे आएँगे, ठीक है? ओके, ऐसा हो सकता है कि ए और सी में से कोई एक बंदा यहाँ पे आएगा और दूसरा बंदा या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, ओके। डी के लिए बात करें तो ई, ए, एफ हो गया, तो डी के लिए कौन बच रहा है? डी के लिए सी बाकी है और डी के लिए बी भी बाकी है, यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करना है। चलो डन है, ई तो निकल चुका है, इसके लिए अपने को कौन-कौन बाकी है? केवल बी है जिसके बारे में आना बाकी है, ठीक है। एक बार ये देखा जाए कि जो बॉक्सेस हैं, यहाँ पे देखो 4 आना था, हाईएस्ट मिल चुका है, ठीक है। तो अब बाकी वैल्यूज़ तो अपनी मिल चुकी हैं, यहाँ पे 2 से ज़्यादा कुछ नहीं बन सकता ना, यहाँ पे 2 बन सकता है, बट यहाँ पे 1 भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, चलो क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है एंड उसके बेसिस पे लेट्स ट्राई टू फिगर आउट देखें क्या बोला हुआ है ना? अभी तक मेरे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 5 लोगों के कॉम्बिनेशन अभी तक मेरे को यूनिकली नहीं मिले, ठीक है? यानी कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जाऊँ तो आई नीड टू हैव 10 एज़ वन ऑफ द वैल्यू व्हिच इज़ नॉट देयर, मतलब मेरा और आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेता हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मिनरल डेफिनिटली फ्यूज़ विद ईच अदर स्लोली? ए और बी, नॉट श्योर, ए और सी, नॉट श्योर, बी एंड डी। क्योंकि पूछा मैं स्लोली ना, बी और डी नॉट श्योर, सी और ई। देखो ये तो यार क्लियरली यहाँ पे मिल रहा है। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पेयर डेफिनिटली फ्यूज विद ईच अदर स्लोली, यानी कि ये तो आंसर अपने को क्लियरली मिल गया। सी और ई समवन जो कि स्लोली फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 मिनरल आर द पेयर वाइज फ्यूजन कंपैटिबिलिटी विद ऑल ओवर द 5 मिनरल यूनिकली नोन फॉर ईच ऑफ देम। ओके, ऐसा है कि अपने को किसी 3 का यूनिकली मिल रहा है, जिसमें से ई हैज़ टू बी वन ऑफ देम, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन वाइज़ अगर एलिमिनेट करें तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो रहा है। यानी कि ऑल्सो मेरे को ए का भी यूनिक मिलने वाला है, ठीक है? ए का और बी और सी में से किसी एक का मिलना है। ए का यूनिक मिलने का मतलब मेरे को यहाँ पे ये वैल्यू को मिलना ज़रूरी है, ठीक है? नाउ दिस इज़ हाउ यू शुड यूज़ द क्वेश्चन पार्ट ऑल्सो, मतलब ये मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला सेट है। इसमें मतलब मैं तो एग्ज़ाम वाले फेज़ में ऐसे ट्राई मारता हूँ, मतलब व्हेन आई गेट स्टक एट वन पॉइंट आई जनरली ट्राई माय हैंड्स कि भाई क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है? तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ए भी यूनिक मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला? फॉर हाउ मेनी मिलियन डू एट लीस्ट 3 ऑफ द पेयर possible pair shows the highly compatible or low compatible fusion behavior, at least 3 pair, ठीक है? What percent of the all possible pair among the 6 mineral are non compatible? ये तो हम बता सकते हैं बिकॉज़ न नहीं, ये अभी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? 1, 2, 3, अच्छा यार ये तो नंबर्स भी तो मिल सकते हैं अपने को। एक बार यहाँ पे ध्यान देते हैं ना। नाउ दिस इज़ 1, 2, 3, ठीक है? 3, 3, 6, 6 के साथ 0 और 8, ठीक है? यहाँ पे अपने को क्या देना है? यार ये 9 नहीं हो सकता, या तो इवन नंबर होना पड़ेगा तभी वो बात बनेगी और ये 11 भी नहीं हो सकता, ठीक है? ये पॉइंट समझना ना, नॉन कंपैटिबल में देखना इसका जो पूरा जो कॉलम का सम निकलेगा, हमेशा वो इवन नंबर निकलेगा, ये याद रखना, ठीक है? मतलब ये देखना ये जो ए का किसी के साथ है तो वो रेप्लिकेट हुआ होगा कहीं, ठीक है? अभी मेरे को क्या दिखा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ का नंबर नहीं पता, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 0 और यहाँ पे 8 है। तो यानी कि मेरे को या तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मैं 0 नहीं ले सकता, 1 ले सकता हूँ। दूसरा क्या लेना पड़ेगा मेरे को 2 ले सकता हूँ, तभी वो इवन नंबर बनेगा 10 व्हिच इन अ वे मेक्स सेंस। आई कैन नॉट टेक 3 एज़ वन ऑफ द वैल्यू और 3 से ज़्यादा मैं ले नहीं सकता। यानी कि यहाँ पे मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने का मतलब मेरा सी का किसी और के साथ नॉन कंपैटिबिलिटी आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ेगी एज़ एक और किसी की, ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट तो देखो यहाँ पे ही अपने को मिला। अब इससे मैं ये निकाल सकता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 से मेरे को क्लिक करा। 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8 और अ क्या कर रहा हूँ? 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8 और 0 और 10, 10 यानी कि 5 आउट ऑफ 15 पेयर्स ऐसे हैं, यानी कि 33.13, ठीक है?
अभी मैंने ऑप्शन जब पढ़ा तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 मिल चुका है, ठीक है? ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 5 ने मेरे को मदद भी कर दी, ठीक है? नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट। अभी देखो मेरा ये पार्ट जो मिला इस पे थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, ये सी और डी का स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेता हूँ, उससे कुछ मिल सकता है क्या अपने को? ठीक है। सी और डी के बारे में अपने को क्या पता था? सी एंड डी के बारे में पता था कि सी एंड डी डज़ नॉट फ्यूज़ ईज़िली विथ, यहाँ पे वो नहीं करेगा। सी एंड डी डज़ नॉट फ्यूज़ ईज़िली मतलब वो हाइली कंपैटिबल नहीं है। अगर वो हाइली कंपैटिबल नहीं है तो वो लो भी हो सकते थे, वो इधर भी आ सकते थे। अच्छा ठीक है। ये चीज़ तो अपने को डिटरमाइन कर पाना मुश्किल है, ठीक है? अच्छा इसी तरीके से कुछ यार इधर भी दिमाग लगाते हैं। मैंने कितना पकड़ा था सम यहाँ पे? ये आ गया था 10 मेरा ना, ठीक है? इधर कुछ कर सकते हैं, इधर कुछ इधर यार नंबर्स बहुत नहीं मिल रहे हैं ना। 2, 2, 4, 1, 5, 2, 3, 4 आई कैन हैव 1 एंड 1 ठीक है? 3, 1, 1 अच्छा 2 इधर भी आ सकता है। 4, 1, 0 इसका तो पूरा डन है। एफ का कुछ कर सकते हैं क्या? एफ-एन-ई, एफ-एन-ए ठीक है, ये भी डिटरमाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक कोई पॉइंट है जिसमें हमने मिस करा है। एक बार ना पॉइंट गो थ्रू कर लेते हैं। पॉइंट नंबर ए पूरा यूज़ हो गया था, पॉइंट नंबर ए में तो कुछ था ही नहीं। Point number B was there is only one mineral that fuses with every other mineral that has been identified as E, and that mineral was the same which has a slow compatibility with C. वो हमने मार्क कर लिया था और C और E को भी टिक दिया था। ओके, ये देखो ये पॉइंट मिला द मिनरल इज ओनली वन दैट फ्यूजेस स्लोली विद सी। ओके, ये पॉइंट को यहाँ पे हमने मिस कर दिया था कि सी और ई के साथ दैट वाज द ओनली मिनरल जिसका कंपैटिबिलिटी यहाँ पे था, यानी कि यहाँ पे क्या आना पड़ेगा? 1 आना पड़ेगा। यहाँ पे 1 आने की वजह से यहाँ पे भी 1 आना पड़ेगा। ठीक है? ये पॉइंट हमने ही मिस करा था कि द मिनरल इज द ओनली वन दैट फ्यूजेस स्लोली विद सी। वही मिनरल ओनली एक था जो कि ई से स्लोली कंपैटिबल है। तो यानी कि यहाँ पे आना चाहिए था। अब ज़रा दोबारा ये सी और डी वाला लाइन पढ़ते हैं ना। सी और डी के बारे में क्या पता था? सी एंड डी डज़ नॉट सॉरी डी एंड सी डज़ नॉट फ्यूज़ ईज़िली विथ ईज़िली नहीं कर रहा ना। अगर देखो डी ईज़िली नहीं कर रहा तो डी को या तो लो होना चाहिए था या तो नन होना चाहिए था। लो हो नहीं सकता यानी कि यहाँ पे देना पड़ेगा डी को, ठीक है? अगर ये यहाँ देंगे तो यहाँ पे ए को देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी अपना ए को आना पड़ेगा ना। चलो, कहाँ गया कलर को? यहाँ पे हमने करा था, यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ पे डी आ गया था तो डी और सी, ठीक है? ये आ गया तुम्हारा यहाँ पे, तो अभी सी भी मिल गया यहाँ पे बी का भी आइडेंटिफ़ाई करना बाकी है। अच्छा, यहाँ पे ये बी हो जाएगा क्योंकि सी, ई, डी, एफ, बी हो गया, तो ये पूरा हो गया। तो यानी कि ए भी ऐसा है जिसके पाँचों मिल रहे हैं, ठीक है? अच्छा क्योंकि अभी यहाँ पे ये मिल गया तो यहाँ पे भी ए को आना पड़ेगा। ठीक, ये भी मिल गया तो ये भी खत्म। अभी भी ये डी और एफ है जो कि हम डिटरमाइन कर पाना मुश्किल है, ठीक है? अच्छा, ऑल्सो अ, सी के लिए भी वी हैव डिटरमाइंड ऑल द 5 ठीक है? चलो, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए भी मार्क कर लें बिकॉज़ ऑप्शन नंबर ए भी मिल गया। ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसके तीनों मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है ए, सी और ई है जिनका तीनों मिल गया, ठीक है? अच्छा, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कुछ और मिल रहा है क्या? ठीक है। अब जब भी यार देखो ये फँसो ना तो ऐसा सेट को लेट गो मत करना। देखो मैंने करीब-करीब 20 मिनट दे दिया था, तो मैंने एक बार बस दोबारा से रिविज़िट कर लिया एंड आई गॉट दैट पॉइंट कि मैंने मिस किया था। तो ये मिल गया, ये मिल गया, ये भी मिल गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है? ये भी डन है, ये डन है। यार इसके लिए अभी बी का पार्ट अभी आइडेंटिफ़ाई कर पाना मुश्किल है। डी और बी का रिलेशन हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बी और डी के बारे में कुछ दिया हुआ था? डी और बी के बारे में भी कुछ नहीं दिया हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे फँसा हुआ है। सिमिलरली एफ के बारे में भी नहीं पता। ठीक है। तो यानी कि मेरे को क्या-क्या नहीं मिला है, यहाँ पे ध्यान दो तो 5 यहाँ मिल गए, ठीक है, यहाँ पे पाँचों मिल गया। ए के, सी के और ई के पाँचों मिल गए, ठीक है। डी के लिए 2 लोगों का मिला है, डी के लिए 4 लोगों का मिला है एंड एफ के लिए भी 4 लोगों का मिला है, ठीक है। ऐसा ही है ना? ए का पाँचों मिल गया, सी का पाँचों मिल गया और ई का पाँचों मिल गया। बी के लिए मेरे को केवल 2 लोगों का मिला है।
नहीं 3 का मिल गया इनफैक्ट बी का, सॉरी बी का 3 लोगों का मिला ना, ए इसका। डी के लिए मेरे को 1, 2, 3, 4 लोगों का मिला है और एफ के लिए भी 4 लोगों का मिला है। यानी कि टोटल मेरे को कितने मिल गए? 15, 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26 यानी कि टोटल 26 लोगों का मिला। यानी कि टोटल मेरे को 13 पेयर है जो यूनिकली डिटरमाइन कर पाया हूँ। अब ये 30 मैं मार्क कर सकता हूँ। नाउ ये क्वेश्चन ऐसा होगा जो बड़ा ट्रिकी होगा, मतलब मैंने यहाँ पे 13 मार्क कर दिया है बिकॉज़ अब मेरे को देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका आंसर पता है कि 13 आया था, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया। बट पेपर वाले पेज में मैं शायद ये क्वेश्चन को नहीं मार्क करता। बिकॉज़ बाकियों के लिए आई एम वेरी श्योर कि मेरा क्या-क्या आंसर्स मिल रहा है, क्योंकि वो दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है जो कि मैं मार्क यहाँ पे नहीं करता पेपर वाले पेज में। एक क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम हमने लॉजिकली निकाल लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 लॉजिकली निकाला था, 5 लॉजिकली निकाला था। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर हाउ मेनी मिनरल्स डू एट लीस्ट 3 पॉसिबल पेयर शो देयर हाइली कंपैटिबल और लो कंपैटिबल फ्यूजन बिहेवियर। ठीक है। फॉर हाउ मेनी मिनरल्स डू एट लीस्ट 3 ऑफ द पॉसिबल पेयर शोज द। यार ये तो तीनों पांचों का हो रहा है ना। फॉर हाउ मेनी मिनरल्स डू एट लीस्ट 3 ऑफ द पेयर शोज द ईदर हाइली और लो। तो यहाँ पे तो दिख रहा है, ए का दिख रहा है, बी का नहीं पता, हाई और लो पूछा हुआ है, सी का भी नहीं है, एटलीस्ट इधर भी नहीं है। तो यार सीबीडी मार्क करना चाहिए बिकॉज़ सी सी का है, इसका है, एफ का हम बता सकते हैं कि एक होगा, या रुक जाते हैं ना, इसको रोकते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिकॉज़ ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला हुआ है कि फॉर हाउ मेनी मिनरल्स डू एट लीस्ट 3 फॉर हाउ मेनी मिनरल्स डू एट लीस्ट 3 ऑफ देयर पेयर शोज़ हाइली कंपैटिबल और लो कंपैटिबल। ठीक है। ए है, बी भी है, एट लीस्ट सी नहीं है, 2 हैं, नहीं है, है, है। 5 होना चाहिए आंसर, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से निकाल दिया बिकॉज़ मेरे को दिख रहा है कि यार ये तो नॉन कंपैटिबल वालों का यूनिक नंबर मेरे पास था। ठीक है। आई वुड रेट दिस एज़ अ मॉडरेट से डिफिकल्ट सेट, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 1 वाज़ ऐसा जो मैं स्किप कर देता क्वेश्चन पेपर वाले फेज़ में। 2, 3, 4, 5 मैं मार्क करता एंड आई वुड हैव ट्रीटेड दिस पेपर इन अ वे आई हैव सॉल्व्ड दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सॉल्यूशन, मतलब मैं क्वेश्चन्स की मदद ले लेके ही सॉल्व करता। ठीक है। ऑल्सो हैप्पी गुरुपूरब। आई प्रे टू गॉड कि आप सब लोग बहुत अच्छा करो कैट के पेपर में एंड आप जाओ लाइफ में अच्छा करो एंड दैट्स इट। एन्जॉय योर डे, कीप प्रैक्टिसिंग।